the statement made by Yogi Adityanath earlier when he was talking about unity in India and gave the reference of Bangladesh, addressing in a gathering in Agra in Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath cited the Bangladesh example and made a comment that has now snowballed into a huge political controversy. Chief Minister Yogi Adityanath said, "Nothing is above national security." He followed it by saying, and I quote, "Bangladesh की गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे." Listen in. राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। Adeeb is joining us on the broadcast with more details. We also have Mohit Bhatt. Adeeb, Yogi Adityanath, they're saying nothing is bigger than the nation. देश से बड़ा कुछ भी नहीं, एक रहेंगे हम तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे. Now, of course, there are multiple political reactions coming in. The opposition is fuming, hitting out at Yogi Adityanath. Adeeb. Well, definitely, Swati, see, it's a strong remark that has come straight from Chief Minister Yogi Adityanath. He was in Agra where he made the statement that we need to stay united on the current Bangladesh situation. What's happening on ground in Bangladesh, see, Chief Minister Yogi Adityanath was referring to that. But he's saying that we need to stay united, and if we are united, we are strong. And if we are getting divided, we will be cut. So this is what Chief Minister Yogi Adityanath is saying, and this does not have one single meaning to his what statement Chief Minister Yogi Adityanath has given, but it has different contexts. If we see it to the political, if we connect it to the political situation that's happening and taking place in Uttar Pradesh, since the BJP lost its the Lok Sabha elections, BJP was having around 62 to 63 seats in Uttar Pradesh, but BJP's tally came down to 33, and now Chief Minister Yogi Adityanath is hinting that all should stay united. As far as the bypolls are concerned, there are bypolls that will be taking soon in the state of Uttar Pradesh. There are around 10 seats, and it's a prestige battle for BJP. Once again, there will be elections in Ayodhya. The Multipur seat will go into bypolls, and Chief Minister Yogi Adityanath himself has taken the responsibility. Samajwadi Party is attacking Chief Minister Yogi Adityanath. Samajwadi Party is saying that who is trying to create In fact, Adeeb, division. stay on with us. Not just the Samajwadi Party. There are reactions coming in from the RJD as well. Samajwadi Party leaders are accusing UP CM Yogi Adityanath of spreading hate on the auspicious occasion of Krishna Janmashtami. We also have a reaction from RJD's Manoj Jha, who says that he has never heard the Chief Minister of Uttar Pradesh speak about issues like unemployment. Let's listen into those reactions. This gentleman, Mr. Adityanath, I have never heard him speak on employment. Never ever. Greatest worry of the people of this country is jobs, unemployment. Does he speak on that? Or Bangladesh, I have been maintaining this. I reaffirm our position. South Asia was singular entity. India, Pakistan and Bangladesh. योगी आदित्यनाथ जी की शिक्षा दीक्षा बड़ी गड़बड़ हुई है। इसी तरह आज के पावन त्योहार पे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी डिग्री और जिसकी पढ़ाई और जिसके संस्कार झूठे हों। तो आज के दिन सौहार्दपूर्ण बयान देना चाहिए था, और इस तरह के बयान देने का मतलब यही होता है नफरत के तावे पे जो रोटी सिकेगी तभी तो सत्ता मिलेगी। Mohit Bhatt is also with us on the broadcast. So, Mohit, the opposition, they're saying at least today the Chief Minister should not have spoken about divisive politics. So, the opposition hitting out saying that the Chief Minister is not speaking about important issues like unemployment, but dividing the society. That's their allegation.
Well, Swati, that has been the line that has been taken up by the opposition parties, where they say that Yogi Adityanath and perhaps in the larger context, the BJP, they have been trying to divide the country on basis of religion, on communal politics. But you see, as we were discussing earlier, this particular statement coming in from Yogi Adityanath, where he has, in a way, asked the majority community in the country, that is Hindus, to be together, ladenge to katenge, Bangladesh jaisa haal hoga. It's a larger message that the BJP has been saying this, that the opposition parties in the run-up to the 2024 elections also tried to divide the Hindu society, Hindu community by raking up the issue of reservation, by raking up the issue of caste census, by raking up the issue of that how OBC are not being given proper representation by this particular government. So clearly it's a message in the larger context, and as we were discussing, the 10 by-polls, which are very, very important, it will be a litmus test for Yogi Adityanath's politics in Uttar Pradesh. They are all set to take place, and hence in that particular context also, Right. this statement is important, that all the Hindus, in a way, what he's saying, should be together. They should vote for a particular party which subscribe to their ideology, and Right. if they do not do it, Adib what and has Mohit, happened stay in on with this. It's Bangladesh. not just the opposition that does not seem to agree. It's also allied JDU leader KC Tyagi, who does not seem to be agreeing with Uttar Pradesh Chief Minister. This is what he said. हमने या हमारी पार्टी ने या हमारे किसी साथी ने हमास और हिजबुल्लाह की गतिविधियों का समर्थन नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिलिस्तीन का समर्थक होते हुए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं उन पर, उसकी भी घोर निंदा करता हूं। बंगाल की सरकार को चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को चाहिए, बांग्लादेश की सरकार को चाहिए कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत समाप्त किए जाए। योगी जी जो कह देते हैं बीच बीच में कटेंगे तो बटेंगे, इन बातों का क्या अर्थ है बीजेपी में? मैं एक समाजवादी हूं जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थक हूं, और मैं ऐसे वक्ताओं को समर्थन नहीं देता। We have IP Singh of the Samajwadi Party joining us on the broadcast. IP Singh जी, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विवादित बयान दे रहे, बांग्लादेश पर उनकी कई तरह की कड़ी प्रतिक्रिया आई। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो देश के रक्षा मंत्री बने या गृह मंत्री बने, और बांग्लादेश जैसे देश में जहां हिंदुओं की रक्षा करने की बात है, वहां एक सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए इन्हें। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, चाहे देवरिया हो, चाहे झांसी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो। यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पटरी से उतर गया है। बिजली गांवों में 8-10 घंटे नहीं आ रही है। सड़कें, यहाँ तक कि जो एक्सप्रेसवे है वो तक ध्वस्त हो गया है। अच्छा। 4 लेन टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी हैं, बिजली नहीं आ रही है, रोजगार नहीं है, विकास के मायने में चलिए उत्तर प्रदेश। ये जवाब ले लेते हैं। आईपी सिंह जी, दिनेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आईपी सिंह जी, आपने जो कंसर्न्स उठाए हैं उसका जवाब दिनेश शर्मा जी से ले लेते हैं। दिनेश शर्मा जी, आईपी सिंह कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं यूपी के, देश के, उस पर मुख्यमंत्री बात नहीं करते, और आरोप ये लगा रहे हैं कि समाज को तो आप बांट रहे हैं। नहीं, पहली चीज तो मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, और दूसरी चीज मैंने सुना भी नहीं है कि आदरणीय आईपी सिंह जी ने क्या बोला है। मैं अपनी बात कहता हूं। आपने जो योगी जी का बोला है, मैं योगी जी के बयान पे ये कहूंगा कि आज योगी जी को क्यों बोलना पड़ा। बांग्लादेश की घटना होती है, हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर मारे जाते हैं, महिलाओं के साथ में घटनाएं होती हैं। बंगाल में महिलाओं के साथ में दुष्कृत्य हो रहे हैं, सरेआम महिलाओं को पीट कर उनके अंगों से, प्रत्यंगों से छेड़छाड़ होती है और वीडियो बनते जारी होते हैं। उस पर विपक्ष के लोग किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करते। वो बांटने किसको है, बांटने की बात किसको होती है कि आज जनगणना करा के अगड़ा को पिछड़े से अलग करो, पिछड़े को अनुसूचित से करो, अनुसूचित को इससे करो। सभी धर्मों में, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो उसमें भी जातियां हैं, ईसाई धर्म में भी जातियां हैं, लेकिन हिंदू वर्ग में ही जातियों को लेकर इस प्रकार का विपक्षी रणनीति क्यों अपनाता है, हर चीज की खेल क्यों करता है, उनको बांटने का षड्यंत्र क्यों करता है? ठीक है। उसका कारण यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक था, हिंदू, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको वहां अगर लेकिन पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, भारत में तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है।
लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है। इस पर टिप्पणी थी योगी आदित्यनाथ की। महाराष्ट्र में जो बहन बेटियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ, मैं डिबेट में नहीं आया हूं और आईपी सिंह जी मेरे लिए सम्मानित हैं, मैं उनसे डिस्कशन नहीं करूंगा। आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है केवल मैं उनका जवाब दे सकता हूं और मैं यही कहूंगा कि जो भी दल हो उनको महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है दिनेश शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं गुजारिश करूंगी आपसे, क्योंकि इमरान मसूद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान मसूद, आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिनेश शर्मा और नॉट, पर लेकिन दिनेश शर्मा ये कह रहे हैं कि योगी जी जो कह रहे थे, योगी जी बता रहे थे कि अल्पसंख्यकों का बांग्लादेश में क्या हाल है, उस पर वो टिप्पणी कर रहे थे कि यहाँ हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, इसीलिए वो कह रहे थे कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, इस तरह की बात करना, देखिए मतलब मैं तो ये समझ रहा था, चूंकि मुझे बताया था कि योगी जी ने शायद ये कहा है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ, तो देशवासी एक रहना चाहिए ना, देशवासी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें तो पूरे देश की बात करनी चाहिए। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, जो बांग्लादेश में हुआ, तो भारत सरकार को निर्णय लेना है, भारत सरकार निर्णय ले, हम उनके साथ खड़े। पहले दिन से सब लोगों ने कहा है कि निर्णय तो आपको लेना है, निर्णय हमको नहीं लेना है, निर्णय आपको लेना है कि क्या करना है। और पूरी तरह से हम बांग्लादेश के अंदर जो रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो बांग्लादेश के हिंदू भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। नहीं इमरान मसूद, आप शायद बात नहीं समझ पा रहे हैं। दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि यहाँ भारत देश में यहाँ हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, और उनका मैसेज ये है कि सबको एक रहना है, बटे नहीं। एक बात सुनिए, जब देश के सारे संसाधन 90% संसाधन 10% लोगों के पास हो, सारी नौकरियां 90% नौकरियां 10% के पास हो, तो आपको गणना से दिक्कत क्यों हो रही? देश में रहने वाले उन लोगों को जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों का हक नहीं मरना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। हमारा सीधा सीधा कहना है, उनको हक मिलना चाहिए। आप दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप किसी भी फील्ड में उठा करके देखिए। ठीक है, अधिकार की बात हम कर रहे हैं, बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। इमरान मसूद ये कह रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, इमरान साहब का बयान तो मैं समझता हूँ अच्छा है, और उन्होंने कहा कि एक करना चाहिए, एक है तो नेक है। यही बात बीजेपी भी कह रही है, और मैं तो उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर भी इमरान मसूद साहब ने कहा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये उनके पार्टी के नेता क्यों नहीं कहते? उनको भी तो वहां के हिंदुओं की प्रताड़ना को सार्वजनिक रूप में प्रतिरोध करना चाहिए ना, बंगाल की घटना का विरोध करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज जो विग्रह पैदा होता है वो इस कारण से है कि आज द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, पिछड़े वर्ग से मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। अभी उड़ीसा से ले लो, आप मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, वहां पर आदिवासी एसटी और एससी वहां पर आज मुख्यमंत्री बने हैं। वेदना विपक्ष की शायद यही है कि हम उनको अधिकार दे रहे हैं, और अधिकार में आज चाहे जितनी योजनाएं चली हैं, आज हम मकान दे रहे हैं तो 80% आदिवासियों को मिल रहा है, और मुस्लिम वर्ग को भी, जो हमारे अल्पसंख्यक बंधु हैं, उनकी आबादी से भी कहीं ज्यादा उनको मिल रहा है। जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उसको आधार बनाकर हमने काम किया है, और आज मकान है, शौचालय है, आज राशन दिया जा रहा है, किसी भेदभाव के बगैर दिया जा रहा है उन लोगों को, जो पिछड़े शोषित लोग हैं वो ऊपर उठ सके। ओके, यही सारी नीतियां हैं। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं एक आईपी सिंह जी से, और उसके बाद इमरान मसूद से इस पर जवाब भी ले लेते हैं कि हम तो अधिकार देने का काम कर रहे हैं। टॉप पोस्ट पर आप देखिए, पिछड़े वर्ग के लोग देश को रूल कर रहे हैं। आईपी सिंह जी, देखिए, अभी कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के विकास पर उत्तर प्रदेश में सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड में सवर्ण मुख्यमंत्री है, ज्यादातर राज्यों में महाराष्ट्र में सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में सवर्ण मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी सवर्ण मानसिकता की पार्टी है, और उसी माइंडसेट से बीजेपी काम करती है। उत्तर प्रदेश में जल मिशन के थ्रू अभी देखा आपने कि नवनिर्मित पानी की टंकी भ्रष्टाचार का घुन इस तरह लग गया कि अभी खड़ी नहीं हो पाई थी, कि वो महीने भर के अंदर वो भर कर गिर गई। सवाल ये है कि आप बिजली पर 1 यूनिट भी बिजली उत्पादन पर पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई काम हुआ है? कोई उत्तर भारत में एक पावर बड़ा स्टेशन बता दे भारत सरकार एनएचआई बता दे कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में आपने 2-2 बार 3-3 बार सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में एनएचआई ने कितना काम किया है, कितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है? उत्तर प्रदेश का ठीक है, लेकिन आईपी सिंह जी, ठीक है, लेकिन आईपी सिंह जी,
मैं आपका जो कमेंट है वो इस बात पर चाहती हूं कि दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि जो कास्ट सेंसस की बात विपक्ष कर रहा है ये उसका जवाब था। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना से बीजेपी क्यों भागना चाहती है, ये सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से नहीं आते। वो पिछड़े वर्ग में शामिल तब हुए जब वो मुख्यमंत्री हुए, तो अपनी कलम से अपनी जाति को उन्होंने पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया। इसलिए पिछड़े वर्ग को लेकर बीजेपी के पेट में बहुत मरोड़ होती रहती है। ऑपोजिशन का कहना है कि बीजेपी भाग रही है और बीजेपी का कहना है कि आईपी सिंह जी, आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो है ऑपोजिशन में वो केवल कास्ट सेंसस को लेकर राजनीति कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू टू दिनेश शर्मा एंड इमरान मसूद एज वेल। Adib continues to be with us on the broadcast. Adib, now that was Dinesh Sharma on the broadcast saying what Yogi Adityanath said essentially is also against how Hindus are being divided into castes. Is that an attack? Was that response from the Chief Minister of Uttar Pradesh against caste census then? Well, definitely see, Swati, as I was mentioning that whatever Chief Minister Yogi Adityanath has said in Agra has different kind of meaning. In fact, several BJP leaders, including Dinesh Sharma, he's saying that Hindus are being divided in caste systems, in different castes in India itself, not just in Bangladesh. In Bangladesh, there's total different situation what's happening on ground in Bangladesh. But in India, Hindus are being divided in different castes, and the Congress party is being very vocal about the caste census. In fact, Rahul Gandhi, when he was in Prayagraj, he was talking about the caste census, that how caste-based census is important for the constitution. And now BJP and the senior BJP leaders, including Dinesh Sharma, they are saying that the Hindus are being divided among the castes, and this is what Chief Minister Yogi Adityanath is saying, that we need to stay united. If we are united, we are strong. So this is how the meaning of the statements, the meaning is being taken away from the Chief Minister Yogi Adityanath's statement, what he has said in Agra. There are several different meanings, but it's a strong remark from Chief Minister Yogi Adityanath, where he is saying that Hindus need to stay united, not just for the Bangladesh, but within the country. There are elections also coming, not just in UP, but in different states. So it's an important message given by Chief Minister Yogi Adityanath, Swati. Right, so important message being sent out by Yogi Adityanath. That's what the BJP is saying after opposition has questioned the statement. Adib, and the opposition is leveling allegations of the intention behind it is to divide the society. Adib? Well, definitely see, the BJP is saying that there are several leaders and parties that are trying to divide the country between the caste and religion. But we are saying, in fact, Chief Minister Yogi Adityanath saying that we should stay united, and if we are united, we are strong. The Congress Party and the Samajwadi Party is saying that BJP is afraid of the caste-based census. If they are, what's stopping them from the caste-based census? Why they are running away from the caste-based census? But the BJP, the senior BJP leaders, they are saying that we need to stay united. What has happened in Bangladesh, was the turn of events that has taken place in Bangladesh, that should not be repeated in India, and for that we need to stay united. The Hindus, the community should stay united, and that community, if we are united, that the community will be strong. Chief Minister also went on to say that if we are divided, we'll be cut. So this is how the Chief Minister Yogi Adityanath has been saying. Well, there will be more political reactions on this. Adib, keep tracking